So students, we are doing simple harmonic motion. It's also popularly known as oscillation, right? So in differential equation of simple harmonic motion, how we derive it, I am going to discuss with you in steps. You know, acceleration of a particle executing simple harmonic motion is negative of the displacement, because it is basic concept that the displaced particle which is executing simple harmonic motion must return, is attracted towards the mean position. The negative sign shows that it is attracted towards the mean position. The acceleration is proportional to the negative of the displacement. Students, you know that simple pendulum slightly displaced, it is executing simple harmonic motion because its acceleration is directly proportional to displacement and it is attracted towards the mean position. That is what we have done in the characteristic. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, A is equal to minus of K into Y, where this A is what? The acceleration, K is called the spring constant. And students, what is A? This is rate of change of velocity, that is minus ky. And students, what is velocity along y-axis? That is rate of change of displacement minus ky. So this is d to y upon dt square equal to minus ky. You know, acceleration is a second order derivative of displacement, but मैंने आपको बड़ा सिंपल किया, acceleration को मैंने dt of v किया velocity, फिर मैंने velocity को rate of change of displacement लिखा, ठीक है, फिर ये second order derivative बन गए आपके पास आ गया, that is d to y upon dt square equal to minus ky. बड़ा सिंपल है, right? We all know what is omega. Omega is under root of k upon m, and omega square m is equal to k. तो d2y dt square is equal to minus k की जगह omega square my. Is it clear students? तो students, ये भी एक इक्वेशन बनती है, इसको हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं. फ्रॉम वन इट इज d2y dt square plus ky equal to 0, एंड थर्ड इक्वेशन बनती है d2y dt square plus omega square my equal to 0. तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस बनती हैं, d2y dt square plus ky 0, d2y dt square plus omega square my equal to 0. तो these two are called what? These are called equation. What equation? Differential equation of simple harmonic motion. Now students, ये linear के लिए होता है. For angular मैं हौच पौच ना हो जाए तो पहले आप इसको नोट करो, फिर हम एंगुलर में चलते हैं, ठीक है? आई जस्ट गिव यू टाइम टू नोट इट डाउन. पास करो और इसको नोट करो जल्दी से. सो स्टूडेंट्स, इसमें मैं एक नोट में एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी बता देता हूँ ब्रीफली. फॉर
angular simple harmonic motion, torque is equal to minus c theta and d2 theta upon dt square, d2 theta upon dt square, that is the angular displacement, plus omega square theta is equal to 0. जैसे वहाँ d2y अपॉन dt स्क्वायर राइट प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई था, आपको याद होगा अभी इसी में ही आप इसको रिवाइंड करके देखें, थोड़ा बैक स्किप करें तो आपको d2y अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 मिला। तो y को रिप्लेस किया हमने, थीटा डाला एंड d2 थीटा अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0. व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर? omega square is equal to c upon I. C is called restoring torque, I is called moment of inertia. ठीक है, C को क्या बोलेंगे? restoring torque, I को बोलेंगे हम moment of inertia. So restoring torque constant भी बोल सकते हैं इसको, restoring torque constant and I is known as moment of inertia. So simple it is. It's called differential equation for angular simple harmonic motion. Angular simple harmonic motion में क्या होता है ना, किसी चीज़ को हम रोटेट करते हैं तो वो ऐसे, एक इमेजिन करो एक डिस्क है, उस डिस्क को बांधा हुआ है एक स्ट्रिंग से, तो उसको जैसे हम रोटेट करते हैं तो इट स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, दैट इज़ अ रिस्टोरिंग टॉर्क. यू नो रिस्टोरिंग टॉर्क किस तरह से लगती है, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर हम ऐसे करेंगे तो इट विल स्टार्ट ऑसिलेटिंग लाइक दिस, तो दैट इज कॉल्ड अ रिस्टोरिंग टॉर्क. करेक्ट. सो रिस्टोरिंग टॉर्क कांस्टेंट आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया. सो स्टूडेंट्स, इसमें कुछ एडिशनल चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड उस एडिशनल चीज़ों के लिए मैं इसको फिर रब करता हूँ ताकि बोर्ड आपको सिर्फ उसी पे फोकस करवाए. सो एक नोट में चलते हैं हम लोग. ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू के अपॉन एम, तो ओमेगा इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. तो ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई अपॉन टी अंडर रूट ऑफ के अपॉन एम. T is equal to 2 pi under root of m upon k. What is m here? Inertia factor. Inertia factor. And k is called what? Spring factor. So T is equal to 2 pi under root of inertia factor upon spring factor. तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी you all know 1 upon T, that is 1 upon 2 pi spring factor divided by inertia factor, that is called frequency. I hope it is clear. So students, the time period is what?
2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन k। और आपको एक और चीज़ बताता हूँ, ये इसको नंबर हम कुछ भी डाल देते हैं। सपोज इक्वेशन ए मान लेते हैं, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर दैट इज मास, स्प्रिंग फैक्टर इज k, दैट इज f इज इक्वल टू k बाई फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, तो दैट इज f अपॉन v। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। एंड स्टूडेंट से काम कर सकते हैं इसमें छोटा सा, हम 2 पाई को एज इट इज रखते हैं, 2 पाई को एज इट इज रखते हैं। ये y, ये a अपॉन बिग लाइन b अपॉन c, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा y, नीचे आ जाएगा f अपॉन m, ये m नीचे आ जाएगा। मालूम है ना आपको, मैथ्स का कॉन्सेप्ट है ये, a बिग लाइन b अपॉन c, दैट इज a अपॉन बी सी। तो ये क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 2 पाई, y इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, f अपॉन m फोर्स अपॉन मास इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ये भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला आपके पास आ गया। सो स्टूडेंट्स, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसी एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि ये टफ है। इट्स नॉट टफ, आपके सामने है। कितना टफ है ये बताओ जरा, खुद ही बताओ आप, कितना टफ है लगा आपको? मेरे हिसाब से तो कुछ भी टफ नहीं है इसमें। थोड़ा सा इसमें कैलकुलस यूज़ होता है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं होता, वो मैंने आपको एक एक स्टेप क्लियर कर दिया। तो अब आप इस लेक्चर्स को रिपीटेडली देखो, नोट्स बनाओ, तो मेरे हिसाब से आपका ये टॉपिक जो है ये अपने आप में क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इस नोट में मैंने आपको प्रूव करके दिया द वेरियस फैक्टर्स, टाइम पीरियड, 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन, ये हम यूज़ करते हैं बहुत जगह। टाइम पीरियड इज आल्सो इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग फैक्टर। इनर्शिया फैक्टर इज मास, स्प्रिंग फैक्टर इज k। सो होप फिजिक्स इज नॉट दैट डिफ़िकल्ट जैसे आपको लगता होगा। एंड अब मैं आपको अगला टॉपिक में लेके चलता हूँ। सिंपल पेंडुलम को हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सिंपल पेंडुलम is all about what? We have what is simple pendulum? Actually, simple pendulum consists of a massless, inextensible string having a metallic bob attached to it. So this bob can get displaced on either side. ये स्ट्रिंग जो है ये इनएक्सटेंसिबल है। क्या है? इनएक्सटेंसिबल, इनएक्सटेंसिबल। ये स्क्रीन पे नहीं आएगा, ये इधर लिखता हूं मैं, इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब है ये स्ट्रिंग के साथ जब मास अटैच किया जाएगा तो इसकी लेंथ ना कंस्ट्रेंट करेगी, ना ये एलोंगेट करेगी, ये फिक्स रहेगी। इट इज़ ए सिल्क थ्रेड, इट इज़ नियरली मासलेस, जो कि पॉसिबल नहीं है बट हम लेते हैं। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ suspension. We call it what? Point of suspension.
इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। क्या बोलते हैं इसको? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन का मतलब है जहां से इस बॉब को हम क्या करते हैं? सस्पेंड करके रखा हुआ है, और ये बॉब यहां पर हम लेके गए, इसको डिस्प्लेस किया थ्रू थीटा, वेरी वेरी स्मॉल। अब इसका वेट mg हमेशा परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, तो ये भी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। दिस विल मेक एन एंगल थीटा। दिस इज mg cos थीटा। ये ट्रैक है तो ये बनेगा mg sin थीटा। ठीक है, राइट। अब ये जो है यहां पर स्ट्रिंग में आएगी टेंशन। स्ट्रिंग में क्या आएगी? टेंशन। जो टेंशन है वो किसकी वजह से है? mg cos थीटा। सो टेंशन इज इक्वल टू mg cos थीटा। ओके, अब कंपोनेंट क्या बचा? mg sin थीटा। mg sin थीटा इस पेंडुलम बॉब को क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसको क्या प्रोड्यूस करेगा? टॉर्क। और इसका जो लेंथ है L है, एंड टॉर्क क्या होता है? mg sin थीटा फोर्स into the perpendicular distance, of course with negative sign, of course with negative sign। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, सर जो इसकी लेंथ है क्या वो L ही रहेगी? हाँ, क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल है इसलिए हम लोग परपेंडिकुलर L ही लेंगे डिस्टेंस। थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो थीटा sin theta is then nearly equal to theta. Since theta is very very small, then sin theta is nearly equal to theta. जब हम बोलते हैं ना थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो बहुत सारे बच्चे को दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा कैसे? एक्चुअली जब थीटा बहुत स्मॉल हो जाता है तो ये देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, देन OP एंड OM दे आर ऑलमोस्ट इक्वल बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये PM will behave like an arc, तो theta is PM upon either OP or OM। एक definition है angle is equal to arc upon radius, तो PM will behave like an arc और OP और OM nearly same है तो radius, तो angle is equal to arc upon radius। Otherwise PM is taken as perpendicular upon OP, that is hypotenuse, therefore sin theta is equal to PM upon OP or OM। Theta is also equal to PM upon OP or OM, therefore sin theta is nearly equal to theta। Simple it is, okay? तो dear students, sin theta is nearly equal to theta, correct? अब हम क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग टॉर्क का वैल्यू डालेंगे। टॉर्क इज इक्वल टू I into alpha. What is alpha? Angular acceleration. What is I? Moment of inertia. This is fundamental equation of rotational motion. जैसे force is rate of change of momentum or mass into acceleration.
सिमिलरली टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, करेक्ट। तो ये टॉर्क की जगह क्या आ जाएगा, आई अल्फा दैट इज ml स्क्वायर इंटू अल्फा माइनस mg इंटू थीटा इंटू एल, बिकॉज साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा. Mass gets cancelled. Mass gets cancelled. L square gets cancelled. What is alpha? Minus g upon L into theta. अब ये जो g है कांस्टेंट है, L है कांस्टेंट है, तो अल्फा द एंगुलर एक्सेलरेशन is directly proportional to negative of displacement, angular displacement theta. Hence, simple pendulum will have what? Angular acceleration, and it is a simple harmonic motion because simple pendulum have angular acceleration which is directly proportional to, ये proportionality sign है, ये alpha है, don't get confused with it. This is alpha, this is proportionality sign. तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ थीटा दैट इज नेगेटिव ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर स्टूडेंट्स, व्हाट यू गेट हियर, द मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक. एंड व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम पीरियड अभी हमने सीखा है 2 पाई अंडर रूट ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज L अपॉन G दैट इज एक्सेलरेशन. ओके, इज इट ओके और नॉट? अरे यार, माइनस अल्फा अपॉन इक्वल टू जी अपॉन एल इंटू थीटा, करेक्ट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, सिंपल इट इज. अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन थीटा, सिंपल इट इज. दिस इज इक्वेशन से 2. आप यहां से भी ड्राइव कर सकते हो. व्हाट इज अल्फा? दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन. व्हाट इज थीटा? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अगर आप एंगुलर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन एल इंटू थीटा, और अल्फा इज नथिंग बट, थीटा नीचे आ जाएगा. I'm rubbing this area. Equation 2 से देखो, अल्फा इज इक्वल टू G अपॉन L इंटू थीटा. नेगेटिव साइन रिमूव किया, तो व्हाट इज अल्फा अपॉन थीटा? दैट इज इक्वल टू G अपॉन L. What is this? This is omega square G upon L, that is omega equal to under root of G upon L. What is omega? 2 pi upon T under root of G upon L. And what is T then? 2 pi under root of L upon G, that is displacement upon acceleration. Hope it is clear. So students, simple pendulum is before you. तो ये कोई मुश्किल नहीं लगना चाहिए आपको. अल्फा इज इक्वल टू जी अपॉन एल इंटू थीटा. अल्फा अपॉन थीटा इज इक्वल टू जी अपॉन एल. ओमेगा स्क्वायर जी बाई एल. ओमेगा इज अंडर रूट जी बाई एल. ओमेगा 2 पाई अपॉन टी द टाइम पीरियड अंडर रूट जी बाई एल. तो टी इज व्हाट? 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. तो ये टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हम लोग लेंथ ऑफ पेंडुलम डिवाइडेड बाय द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी करते हैं. अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. सो स्टूडेंट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम. पहला फैक्टर हम लेने वाले हैं एम्पलीट्यूड. फर्स्ट फैक्टर विच वी आर गोइंग टू टेक एम्पलीट्यूड.
राइट। तो एम्पलीट्यूड, अभी अभी हमने टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम किया है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। सभी बच्चे नोट्स साथ साथ बनाते जाएं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप साथ साथ नोट्स तैयार करते जा रहे हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम में पहला फैक्टर हम ले रहे हैं एम्पलीट्यूड। स्टूडेंट्स क्या देखते हैं आप, लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, ग्रेविटी है 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, तो कहीं भी एम्पलीट्यूड का रोल ही नहीं दिख रहा। तो टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड। So long the motion is simple harmonic motion। जब तक मोशन सिंपल हार्मोनिक है तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। अब कब तक सिंपल हार्मोनिक मोशन है, अभी हमने स्टडी किया है, जब साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, जब साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल अपॉन जी। तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, द मोशन इज सिंपल हार्मोनिक लीनियर मोशन, तो एम्पलीट्यूड का कोई रोल नहीं है। हाँ, अगर ऑसिलेशन बढ़ा दें हम बड़ी, तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं रहेगा, this will become simply oscillatory motion। तो इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा, वो मैं आपको लिख के देता हूं अभी इसको नोट कीजिए आप। इफ एम्पलीट्यूड इज वेरी लार्ज, इफ एम्पलीट्यूड इज वेरी लार्ज, then t is equal to 2 pi under root of L upon G। L is what? The length of the pendulum। अब यहां एक इक्वेशन लिखेंगे 1 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा नॉट अपॉन 2 plus so on, plus so on। and students, this is the time period if the amplitude is very large। in this situation, amplitude of the motion is no more behaving like a simple harmonic, it is a oscillatory motion, it is a oscillatory motion। and ये जो theta naught है is the amplitude of the motion। if theta naught is what here, the amplitude of the motion instead of theta, theta naught क्या है, amplitude of the motion which is oscillatory, not simple harmonic motion। तो ये एक और फैक्टर आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो t इज इक्वल टू टी नॉट 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी को हम लेंगे टी नॉट, तो इसको सॉल्व करेंगे, ये बन जाएगा 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 16, 1 प्लस थीटा नॉट स्क्वायर अपॉन 16। ये थीटा नॉट क्या है, दैट इज द
amplitude of the motion. Theta naught is what? Amplitude of the motion. So these are the factors which are affecting the time period, that is called amplitude. अब मैं second factor पे जाने वाला हूँ, right? The second factor is mass of the bob. The time period of simple pendulum is what? Is t equal to 2 pi under root of L upon G. आप अपने ब्रेन में, अपने माइंड में ये फिगर जरूर रखें. ये बॉब है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम है, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, ये पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन है. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब. होप इट इज क्लियर. If the solid bob is replaced by hollow bob, the time period of a simple pendulum will remain unchanged. अगर आप solid bob को replace करके hollow bob इसमें लगा देते हैं, ये solid bob है ना, अब ये सॉलिड बॉब की जगह आप हॉलो लगा देते हैं तो भी टाइम पीरियड क्या रहेगा? अनचेंज्ड रहेगा. जैसे कोई एक कैंडिडेट झूला झूल रहा है, कोई एक कैंडिडेट झूला झूल रहा है सिंपल पेंडुलम टाइप, तो उसके साथ एक और कैंडिडेट बैठ जाता है तो उसका टाइम पीरियड अनअफेक्टेड रहता है. सिंपल. तो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब. अब हम थर्ड टॉपिक पे चलते हैं, थर्ड फैक्टर पे चलते हैं. अगर हम बात करें सिंपल पेंडुलम की तो T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. ये जो L है दैट इज द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. L इज व्हाट? Length of the pendulum. I will say L is the effective length of the pendulum. Effective length of the simple pendulum. Simple pendulum. यू विल पुट ए क्वेश्चन. थोड़ा साफ लिख देता हूँ चलो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप मोबाइल पे भी देखते होंगे, टैब पे भी देखते होंगे. विपिन सर एक नेचुरल टीचिंग देने की कोशिश करते हैं, मतलब मैं खुद ही विपिन सर बन जाता हूँ, बिकॉज मैं जब टीचर हूँ तो मेरा एक अलग रुतबा है. तो डियर स्टूडेंट्स, आई रिस्पेक्ट द सीट ऑफ ए टीचर हियर. तो L is the effective length of the simple pendulum. अगर इफेक्टिव लेंथ चेंज होगी तो क्या होगा? टाइम पीरियड पे असर पड़ जाएगा. जैसे कोई कैंडिडेट झूला झूल रहा है और बैठे बैठे वो खड़ा हो जाए तो उसका ऑसिलेशन टाइम पीरियड डिक्रीज कर जाएगा. दैट विल डिक्रीज बिकॉज इफेक्टिव लेंथ डिक्रीज कर गई. अगर आप, एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है, अगर आपके पास एक सफियर है, उस सफियर में सैंड है, अगर उसमें आप एक होल कर दो तो वो स्फीयर जो ऑसिलेट कर रहा है तो क्या होगा? सो उसमें वाटर भरा हुआ है, सैंड की बजाय चलो वाटर ले लो, सैंड भी ले सकते हैं. तो जैसे जैसे वाटर इसमें से बाहर निकलता जाएगा, इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी लोअर होती जाएगी, इसकी इफेक्टिव लेंथ इंक्रीज करती जाएगी. तो पहले टाइम पीरियड इंक्रीज करेगा,
फिर वापस वही हो जाएगा जो उस पे था विदाउट होल जो टाइम पीरियड था, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी वहीं सेंटर पे फिर शिफ्ट कर जाएगी. What is effective length? It is the distance between the point of suspension and center of gravity, CG, center of gravity of a simple pendulum. So students, so as L increases, time period also increases. If L decreases, time period also decreases. तो ये है थर्ड फैक्टर. अब मैं आपको कुछ इस पे डिफरेंट ग्राफ्स बता देता हूँ. डिफरेंट ग्राफ्स बिटवीन L एंड टाइम पीरियड, राइट. ओके, तो ये नोट कर लीजिएगा आप. मैं पॉज कर देता हूँ, आप नोट कीजिए इसको. डिफरेंट ग्राफ्स फॉर द टाइम पीरियड. डिफरेंट ग्राफ्स. बहुत ध्यान से देखो स्टूडेंट्स. T is equal to 2 pi under root of L upon G. T square is equal to 4 pi square L upon G. Right? So 4 pi square upon G is constant. So T square is proportional to L. Or you can say L is proportional to T square. तो इसका जो ग्राफ बनता है that will be like this. तो along this axis we have time, and along this axis we have length. तो L is equal to proportional to T square. तो this is the type of the graph. ये एक कर्व बनेगा हमारे पास, पैराबोलिक कर्व, जैसे y is equal to kx स्क्वायर होता है, पैराबोलिक, राइट. और सेकेंड ग्राफ हम प्लॉट करते हैं. अगर हम T और L को लेके चलें, पहले आप इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर मैं दूसरा ग्राफ बनाता हूं. मेक इट. इंस्टेड ऑफ T, अगर मैं T स्क्वायर लूं इस एक्सिस पे और इधर L, तो L इज प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर. तो ये क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. क्या बनेगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ. इसी तरह से अगर मैं T और अंडर रूट L के बीच में लूं, इस तरफ T थर्ड ग्राफ और इस तरफ अंडर रूट L लूं, तो ये बनेगा T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L. तो ये हमारे पास डिफरेंट ग्राफ्स L एंड T को लेके आए. अब हम इफेक्ट ऑफ G को स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स. सो इफेक्ट ऑफ G, दैट इज ग्रेविटेशनल acceleration due to gravity. You know, T is equal to 2 pi under root of L upon G. All right. 2 pi is constant. अगर हम L को भी constant रखते हैं तो T is inversely proportional to 1 upon under root of G. Correct? So as we go high,
above the earth's surface or we go deep inside the mines, the value of G decreases. आपने पढ़ाया हुआ है G H is equal to G into 1 minus 2H by R और G D equal to G into 1 minus D by R. ये acceleration due to gravity due to depth है. G H is equal to G into 1 minus 2H upon R due to height है. चैप्टर है ग्रेविटी, उसमें आपने वेरिएशन ऑफ G ड्यू टू हाइट एंड डेप्थ पढ़ाई है. तो अब आप एक चीज़ नोट करेंगे बहुत ध्यान से कि जो T इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ G है हमारे पास, तो इट मीन्स दैट पीरियड ऑफ पेंडुलम T डिक्रीजेस विद हाइट, पीरियड ऑफ पेंडुलम T इंक्रीजेस विद डेप्थ. तो बिकॉज G डिक्रीजेस टाइम पीरियड इंक्रीजेस. अगर हम ऊपर को जाते हैं हाइट पे तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करता है. अगर हम नीचे आते हैं डेप्थ में तो ग्रेविटी डिक्रीज करती है तो टाइम पीरियड इंक्रीज करता है. तो स्टूडेंट्स ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं, हमने स्टडी की इफ़ेक्ट ऑफ G. तो स्टूडेंट्स अगर हम एक क्लॉक ले लें और उसका G के साथ हम रिलेशन निकालें तो ग्राफ क्या बनेगा. लो डिफरेंट ग्राफ्स विद G भी कर लेते हैं, ठीक है. इतने में आप इसको नोट करो. इफेक्ट ऑफ G जो हमारा किसके बाद आया, ये लेंथ के बाद आया, राइट. सबसे पहले एम्पलीट्यूड किया, नंबर 2 पे हमने मास किया, नंबर 3 के बाद लेंथ की, लेंथ के बाद फोर्थ फैक्टर हमने स्टडी किया इफेक्ट ऑफ G. अब इसमें भी कुछ ग्राफ्स हैं वो भी हम स्टडी कर लेते हैं. इतने में आप नोट कीजिए. एक्चुअली मैं ना इसी में सारा कुछ हौच पौच नहीं करता, बिकॉज आपने स्क्रीन पे देखना है तो आपको एक फ्रेम में एक ही टॉपिक आया है ना, और पूरा लेक्चर्स तो आपके पास ही है, तो रिवाइंड करेंगे तो कंटिन्यूटी बन जाती है, राइट. सो graph between G and T square. C. T is inversely proportional to 1 upon under root of G. तो ये हमारे पास ग्राफ है यहाँ पर एंड y एक्सिस पे हम G लेते हैं. y एक्सिस पे क्या लेते हैं, G, एंड इस एक्सिस पे हम क्या लेते हैं, T स्क्वायर, राइट. तो ये क्या बन के आएगा हमारे पास, इट विल बी लाइक दिस. द नेचर ऑफ द ग्राफ विल बी एज शोन. अगर हम इस एक्सिस पे 1 अपॉन अंडर रूट G लें और इस एक्सिस पे हम लोग T लें, तो स्टूडेंट्स ये क्या बन के आएगा, दिस विल बी अ स्ट्रेट लाइन, राइट. तो ये है हमारे पास इफेक्ट ऑफ G. अब पांचवा, फिफ्थ, लास्ट इफेक्ट है टेम्परेचर. पेशेंस से पढ़ना पड़ता है फिजिक्स को, है ना. सो स्टूडेंट्स, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो ये सिल्क थ्रेड वगैरह पे तो काम नहीं करेगा. ये कब करेगा, जब हम पेंडुलम लेंथ की L मेटल की हो. किसकी लेंथ हो, मेटल की. तो नॉर्मल टेम्परेचर पे टाइम पीरियड विल बी T नॉट 2 पाई अंडर रूट ऑफ L अपॉन G. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इसका लेंथ इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा.
तो L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. L is equal to L naught 1 plus alpha delta theta, right? In this very situation, what will be the time period? T is equal to 2 pi under root of L naught 1 plus alpha delta theta upon G. अगर हम डिवाइड करें T अपॉन T नॉट तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा? अगर हम इसको डिवाइड कर दें, व्हाट यू विल गेट? L अपॉन L नॉट. इसको बाद में लिखेंगे हम. ये हम L नॉट का वैल्यू लिखेंगे लेटर, अभी नहीं. हाँ, तो ये क्या बन के आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ यस L अपॉन L नॉट. सही में? तो T अपॉन T नॉट, दिस इज L naught is L into 1 plus alpha delta theta. This gets cancelled. T upon T naught. This is 1 plus alpha delta theta minus 1 upon 2. क्योंकि ये बन जाएगा 1 upon 1 plus alpha delta theta, और ये जब ऊपर जाएगा तो 1 plus alpha delta theta minus half. अब इसको अगर हम बायनोमियली ओपन करते हैं, निग्लेक्टिंग द हायर टर्म्स, तो T अपॉन T नॉट 1 माइनस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. 1 प्लस एक्स टू एन यार 1 प्लस एन एक्स, 1 प्लस एक्स टू एन 1 प्लस एन एक्स प्लस माइनस माइनस एन हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. Simple it is. It's not a big deal. तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो ये रिजल्ट बन के आया, L इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा. L इज इक्वल, अरे यार एक मिनट ठहरो, लेट मी डू सम करेक्शन. हो जाता है, सॉरी. T अपॉन T नॉट, व्हाट इज L नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा L नॉट. दिस गेट्स कैंसल्ड. T अपॉन T नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा टू पावर 1. नाउ वी अप्लाई बाइनोमियल. T अपॉन T नॉट 1 प्लस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. तो T अपॉन T नॉट, इसको इधर ले जाओ, माइनस हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. तो T माइनस T नॉट अपॉन T नॉट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. तो T माइनस T नॉट इज डेल्टा T अपॉन T नॉट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. तो डेल्टा T इज इक्वल टू T नॉट हाफ अल्फा डेल्टा थीटा. तो ये हमारे पास टेम्परेचर के कारण टाइम पीरियड में चेंज आया. सो स्टूडेंट्स, these are the 5 factors which is affecting the time period of a simple pendulum. Hope बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर तंग कर रहा था या है, आप बताइएगा. एंड ये लेक्चर नोट कीजिए, नोट्स बनाइए आप, और कोई भी न्यूमेरिकल्स डाउट्स होते हैं आप देखो, ऐसा है कि मैं न्यूमेरिकल्स अपनी मर्जी के भी डाल सकता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ डाउट्स ही लूँगा. अगर आपने
डिटेल्ड MCQs करने हैं तो हमारा एक ऐप है www.topranker.com और सिंपली आप topranker.com गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, साइन इन कीजिए, लॉग इन कीजिए। उसमें 3-4 सैम्पल क्वेश्चंस हैं, पेपर्स, उसको सॉल्व कीजिए, सॉल्यूशन भी आपको मिलेंगे उसमें। तो ये बहुत गज़ब की ऐप है, इसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेशंस MCQs कर सकते हो। बाकी YouTube पे आपको बहुत बेनिफिट होना चाहिए। एंड डू टेल अस। एंड 9814121996 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पे आप अपने कुछ भी सजेशंस दे सकते हो। ऐप के बारे में भी आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। सो स्टूडेंट्स, बट मैं आलतू फालतू नहीं होता, टू द पॉइंट होता हूँ। अब लेक्चर ख़त्म होने के बाद मैंने ये 2-3 पॉइंट्स आपको डिस्कस किए, अदरवाइज वी वर टोटली फोकस्ड। अच्छा, एक चीज़ है, आप पॉज कर कर के पढ़ो, समझो, रिवाइंड करो, समझो, रिवाइंड करो, फिर आगे चलो। तो अगर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ तो छोटे छोटे वीडियोस में क्या होता है कि कंटिन्यूटी नहीं बनती है, फ्लो बनना शुरू हो जाएगा फिर। तो और कुछ नहीं है, मतलब फ्लो बनेगा, आप अच्छे से समझोगे इसको। ठीक है, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। चैनल अच्छा लगता है, पढ़ने के लिए फिजिक्स ईजी लगती है, फ्रेंड्स को भी बताओ यार, कहीं भी बैठ के पढ़ सकते हो, गांव में कहीं भी, कितना ईजी है। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग फिजिक्स।